गांव में आपका कितना आबादी होगा, कितना पॉपुलेशन होगा गांव में, और घर कितना होगा? 150 है आदिवासी में। 150 आदिवासी। Today, second year students of our university visited Muru village. मिर्चा लगा रहे हैं, और क्या क्या लगाएंगे? भी लगाएंगे, हाँ? घुंगरा लगाएंगे, भी रहेगा, और इसमें क्या लगेगा? सब वही सब लगेगा। The village consisting of 250 households, comprising of more than 1,200 population. The village is a tribal dominated village. Village is situated at a distance of 15 kilometers from Ranchi city, but some of the basic facilities are not available in this village, like proper schooling, people are not getting healthcare facilities. Even Anganwadi center is not functional. Hello, I am Priyanka from second year from National Law University, Ranchi. I am here in this village to collect data and real life experience from this village, and my topic was education. I visited 3 schools. The strength of female students in standard 10th and 9th were comparatively lower than in standard 7 and 8. Hello everyone, I am Boivashato, and my topic was women empowerment, a comparative study between tribals and non-tribal areas, and between tribal homes and non-tribal homes. So the general findings that I could find is that tribal women have more freedom than the non-tribal women, and in terms of like the general living, festivities, they have a lot of, like, everyone enjoys, like that's what they said. But mostly in this, the legal concepts are not too much prevalent, as in like any problem, any dispute is solved by the villagers themselves, and there are also women participation in the village, like in the solving matters, but like formal courts and all, they are not so much into it. And also in terms of healthcare facilities is very lacking in this village, and they have to go to the main city for any healthcare facility is what they have. हम इस गांव में आए थे पता करने की लोगों की क्या ज़रूरतें हैं, लोगों को क्या चाहिए, क्या गवर्नमेंट स्कीम्स इस गांव तक पहुंच रहे हैं, क्या इस गांव में जातिवाद है, इस गांव की क्या क्या समस्याएं हैं। हम पूछ लें आपको गांव में क्या क्या अच्छा चीज़ है, क्या क्या फैसिलिटी आपको मिल रहा है, बिजली, पानी, राशन कार्ड, गांव में कुछ समस्या है तो सर को बता दीजिए। मेरा नाम केशव अग्रवाल है। हम इस गांव में आए थे पता करने की लोगों की क्या ज़रूरतें हैं, लोगों को क्या चाहिए, क्या गवर्नमेंट स्कीम्स इस गांव तक पहुंच रहे हैं, क्या इस गांव में जातिवाद है, इस गांव की क्या क्या समस्याएं हैं। तो हमने ये जाना कि ये गांव में गवर्नमेंट स्कीम्स पहुंच तो रहे हैं, पर अभी भी बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि लोगों को अप्लाई करने में, लोगों को करने में बहुत समस्या आ रही है। कुछ गवर्नमेंट स्कीम जैसे मैया सम्मान योजना काफ़ी अच्छे से इस गांव में पहुंच रहे हैं, जैसे यहाँ के 90% घरों में मैया सम्मान योजना आ रहा है, बट जैसे दूसरे स्कीम्स है गांव के 1% घर में भी वो सब सुविधाएं नहीं पहुंच रही है। और ये गांव के लोगों को मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी, बिजली और सड़कों की बहुत दिक्कतें हैं। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए कुछ व्यवस्था है? बिहार झारखंड में होता है ना कि आते ही नहीं है टीचर, तो वो वाला इशू नहीं है छत्तीसगढ़ में। हाँ, क्योंकि लोग थोड़ा ज़्यादा एक्टिव होते हैं उस मामले में, पढ़ाई के मामले में काफ़ी एक्टिव है वहाँ पे लोग। थोड़ा थोड़ा होता है, ताली बंद हो जाता है, जल्दी नहीं आता है पानी ना।
it has improved a lot. It is not less than any private school. You can see the 4 houses here: yellow house, blue house, green house, and red house. So we are conducting house-wise competitions. You can see that TLM, the print reach school. So it has all developed in many ways. But still we are facing certain challenges, like this area is rural one. You have come through this, you must have seen that this is a rural background. The most challenging is the dropout. मेरा नाम सैयदा नाज़ा, मैं पीएम श्री उत्क्रमित विश्वविद्यालय की विद्यार्थी हूँ। ये हमारा हाउस बोर्ड है, जैसे कि ग्रीन हाउस। हमारे स्कूल में कंपटीशन होता है कि जिसका हाउस बेटर होता है उन्हें हर साल पे ट्रॉफी दी जाती है। खेती में मदद करते हो क्या? मतलब कैसे खेती में मदद करते हो? पापा का कैसे मदद करते हो तुम? जैसे बारी जैसे उदार से तोड़ते हैं, उसके बाद उसको सब पहन करके लगाते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँ। मेरा नारा है, तुम मुझे उपस्थिति दो, तुम अटेंडेंस, तुम आओ स्कूल, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, मैं तुम्हें रिजल्ट दूंगा। आमतौर पर सरकारी स्कूल या कहीं भी लोगों का से वो कागज दिखता है, सेवा में सभी कुछ लिखा भेज देते, लेकिन इतना पैड होने चुके, इसमें लोगो है, इस्टेब्लिशमेंट डेट है, अपग्रेडेशन डेट है, यूडाइस कोड है, स्कूल का ईमेल है, ये सारा पीएमश्री का लोगो है, झारखंड सरकार का लोगो। ये हम लोग इसको तैयार करके रखते हैं। ये मेरे टीचर का अपना पूरा डाटा है, ये पूरा मेरे टीचर का पोर्टफोलियो है। इसको क्या काम हमने बांटा, हर टीचर को 4 विभाग बांटा, उनको काम करना है प्रोजेक्ट इम्पैक्ट। ये स्टूडेंट्स का वो है परसेंटेज वाइज, जिससे अपने आंकड़ा को बताया कितने % बच्चे इसके हैं, ये बना हुआ है, कितना मुस्लिम, कितना ये चीज़। ये रूटीन है KG से 5 तक का, फिर 6 to 10 तक का रूटीन है। ये फिर होता है टीचर वाइज रूटीन, उस टीचर का कब घंटी है उसको मालूम होना चाहिए। My name is Avinash Verma. I am from the batch 2018. I have came here for conducting our sociology research, and they have expressed all their feelings and what are the issues that they are facing. काफ़ी उम्मीदों से उन्होंने बताया। अब देखते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनकी सारी परेशानियाँ, दिक्कतें रिजॉल्व हो जाए।